Luxury Online class, and today we are going to discuss about the topic hyperaldosteronism. So when there is hypersecretion of the hormone aldosterone, now we all know there is presence of an adrenal gland over the kidney. This is kidney. I'm not good in making diagram, but this is kidney, and here is a gland which is called an adrenal gland. Adrenal gland. Now this adrenal gland secretes a hormone aldosterone. So when there is hypersecretion of the aldosterone, then this condition is known as hyperaldosteronism. Now this hyperaldosteronism is subcategorized into two types, primary and secondary. Primary and the secondary. The primary is what? When there is hypersecretion of the aldosterone, but what is the reason why this hormone aldosterone is secreted too much in case of primary hyperaldosteronism? Because this is kidney. The adrenal gland present over the kidney, when there is presence of any adenoma or hyperplasia of the gland. Hyperplasia of the gland. So these two conditions of the gland is present. If there is hyperplasia of the gland or adenoma of the gland, then there will be hypersecretion of the hormone called aldosterone, and this is primary aldosteronism because there is hypersecretion of the hormone aldosterone. Now what happens in case of adenoma? In case of adenoma, there is uniform cortical cells where is vesicles filled with lipids will be seen during the microscopic examination. तो एडेनोमास की कंडीशन के अंदर जब ग्लैंड में एडेनोमा प्रेजेंट है तो वहां पे हमें यूनिफॉर्म कॉर्टिकल सेल्स दिखेंगे एंड वेसिकल्स फिल्ड विद लिपिड दिखेगा. एंड फर्दर व्हेन वी विल लुक फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस माइक्रोस्कोपिकली तो हमें यहाँ पे स्पाइरोनोलैक्टोन बॉडीज दिखेंगी. स्पाइरोनोलैक्टोन बॉडीज दिखेंगी. ये हमें क्यों दिखेंगी? ये इंडिकेट करती है दैट पेशेंट हैज टेकन spironolactone treatment in the past. This indicates presence of spironolactone bodies. So in case of adenoma, there will be uniform cortical cells and filled with the lipid vesicles, and there will be spironolactone bodies seen in the microscope examination. Then hyperplasia क्या है? Hyperplasia of the adrenal gland is a condition where there is hyperplasia of the cells of zona glomerulosa. So zona glomerulosa के cells का hyperplasia हो जाएगा. Then third condition could be the cancer. Cancer अगर present है, if there is cancer of the adrenal gland. So these three conditions, adenoma, hyperplasia and cancer of the adrenal gland, if there is, then this is primary hyperaldosteronism, where is hypersecretion of the aldosterone जो कि secrete हो रहा है एडेनोमास के कारण या हाइपरप्लेसिया ऑफ द ग्लैंड के कारण या कैंसरस ग्लैंड के कारण. So there is hypersecretion. Now in clinical manifestations we will see that there will be high BP. तो हाई BP है तो रेनिन जो है वो लो मिलेगा, लो रेनिन. This primary hyperaldosteronism is also called Conn's disease. This is called Conn's syndrome or disease. Conn's syndrome. The primary hyperaldosteronism is also called Conn's syndrome.
जिसमें जो etiology है, जो रीजन है वो है that is the presence of adenoma or the hyperplasia of the cancerous gland. So that causes what? Hypersecretion of the hormone aldosterone. Now because there is high BP, so renin जो है वो low होगा, and low renin होगा, high BP है, तो high BP है and aldosterone ज्यादा है, तो aldosterone क्या करता है? रिटेंशन करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम एंड वाटर का, तो देयर विल बी मोर सोडियम, तो क्या होगा? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, पीएच बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगा, बिकॉज एल्डोस्टेरोन हार्मोन डू व्हाट? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, तो देयर विल बी मोर सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। एंड जब सोडियम रिटेंशन, जब सोडियम पोटेशियम पंप जो है, तो जब सोडियम इनफ्लक्स होगा तो पोटेशियम आउट, तो देयर विल बी लो पोटेशियम, दैट इज लो पोटेशियम, दैट इज हाइपोकैल्सीमिया। सो दिस कॉर्न सिंड्रोम और प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोन, सो इन clinical features of primary hyperaldosteronism or the Conn syndrome, we will see that there is sodium and water high, potassium जो है that is low, that is hypokalemia, and there will be metabolic alkalosis, एंड यूरिन के अंदर एल्डोस्टेरोन ज्यादा सिक्रीट होगा, सीरम के अंदर एल्डोस्टेरोन ज्यादा मिलेगा, एंड देयर विल बी हाई बीपी। सो इफ पेशेंट कम्स टू योर क्लिनिक एंड बीपी बहुत ज्यादा है, हाइपरटेंशन है, एंड इन स्पाइट ऑफ गिविंग द मेडिसिन ट्रीटमेंट बीपी इज नॉट कमिंग डाउन, एंड जब हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, पीएच इज हाई, एंड यूरिन के अंदर सीरम में एल्डोस्टेरोन ज्यादा है, पोटेशियम कम है सीरम में, तो दैट इज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और द कॉर्न सिंड्रोम। नाउ इन सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जो सेकेंडरी है उसमें क्या होता है? जो सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है उसमें लाइक दिस इज किडनी एंड देयर इज लो बीपी. So what happens? There are some special cells, juxtaglomerular cells, present in the afferent arteriole. This is what? This is here. This is afferent arterioles. So afferent arterioles के यहाँ पे juxtaglomerular cells होते हैं that monitor the blood pressure of the kidney and the artery and veins. So अगर BP कम होगा, low BP होगा, तो this juxtaglomerular cells will secrete renin. So जब low BP होगा तो renin जो है वो renin secrete करेंगे juxtaglomerular cells ताकि BP को बढ़ाने के लिए. जब low BP है तो renin secrete होगा and renin जब secrete होगा तो वो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन. इट इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर. सो इट विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन 1. एंड एंजियोटेंसिनोजन जो कि प्रोटीन है सिक्रीट बाय लीवर, so that will get converted into angiotensin 1, and angiotensin 1 will get converted into angiotensin 2 in the lungs by the angiotensin converting enzyme or the S, that is ACE. So the angiotensin 1 will get converted into angiotensin 2 by the S, that is angiotensin converting enzyme in the lungs, and this will secrete what? Aldosterone.
एंड एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन। तो जो बीपी कम था, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स ने मॉनिटर कर लिया कि बीपी कम है, तो उसने क्या किया, रेनिन सिक्रीट किया। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 विल गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 by the S, that is angiotensin converting enzyme, and this angiotensin 2 will secrete aldosterone. Aldosterone will do what, retention और reabsorption of the sodium। तो क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोन के अंदर जो सिक्रीशन हो रहा था एल्डोस्टेरोन का, वो हाइपरप्लेसिया ऑफ द ग्लैंड एंड एडेनोमा ऑफ द ग्लैंड या कैंसरस कंडीशन ऑफ द ग्लैंड, वो सिक्रीट कर रहा था एल्डोस्टेरोन। बट सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर रेनिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है एंड रेनिन आगे फर्दर जो कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है एंजियोटेंसिन 1 देन एंजियोटेंसिन 2 एंड वो देन आगे सिक्रीट कर रहा है एल्डोस्टेरोन। तो जो प्राइमरी था, प्राइमरी में प्लीज टू रिमेंबर दैट प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर देयर इज हाई बीपी एंड लो रेनिन। वहां पे रेनिन सिक्रीट नहीं हो रहा था, वहां पे एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा था, हाइपरप्लेसिया एंड एडेनोमा ऑफ द ग्लैंड। तो वहां पे रेनिन लो था एंड हाई बीपी था। एंड सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर देयर इज हाई बीपी एंड हाई रेनिन, क्योंकि इसमें रेनिन सिक्रीट हो रहा है। रेनिन जो है वो सिक्रीट होगा, juxtaglomerular cells will secrete renin in case of secondary hyperaldosteronism, and जब रेनिन सिक्रीट होगा तो that will cause reabsorption of the sodium and water and sodium, then there will be high BP। तो सेकेंडरी के अंदर हाई बीपी एंड हाई रेनिन है एंड प्राइमरी में हाई बीपी एंड लो रेनिन है। एंड सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर जो रीजन है, जो इटियोलॉजी है, वो दैट इज द स्टेनोसिस और द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द रीनल आर्टरी या आर्थरोस्क्लेरोसिस है। दैट इज प्लैक्स बन गए हैं या ब्लड थिक हो गया है, या स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज हो गया है, रीनल आर्टरी की नैरोइंग हो गई है या सिकुड़ गई है, थिन जो नैरो हो गई है, एरिया कम हो गया है, या ऑब्स्ट्रक्शन है रीनल आर्टरी में, तो क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा, प्रेशर ऑफ द ब्लड विल बी लो। तो जब लो ब्लड प्रेशर होगा तो juxtaglomerular cells will monitor the blood pressure and they will secrete renin, and renin will do what, renin will convert angiotensinogen protein secreted by the liver into the angiotensin 1, and angiotensin 1 will get converted into angiotensin 2 and that will secrete aldosterone. So this is the pathology in case of secondary hyperaldosteronism. Now investigations में हम क्या देखेंगे, पहले तो हम रेशियो देखेंगे, रेशियो ऑफ द बीपी एंड रेनिन। तो अगर हाई बीपी एंड हाई रेनिन है तो फिर वो क्या हुआ, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। अगर लो बीपी है, सॉरी, अगर हाई बीपी है एंड लो रेनिन है तो दैट इज प्राइमरी hyperaldosteronism or the Cohn syndrome। प्राइमरी hyperaldosteronism को हम Cohn syndrome भी कहते हैं। देन इसके अलावा हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, यूरिन में देखेंगे, यूरिन में एल्डोस्टेरोन देखेंगे, देन ब्लड गैस एनालिसिस, क्योंकि देयर इज सोडियम रिटेंशन, सोडियम ज्यादा है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, तो ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे, यूरिन के अंदर एल्डोस्टेरोन चेक करेंगे, देन रेनिन एंड बीपी चेक करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, देन पोटेशियम लेवल्स कम है तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड गैस एनालाइज, ब्लड गैस एनालाइज, then MRI CT scan and अल्ट्रासाउंड की एडेनोमा प्रेजेंट है या हाइपरप्लेसिया है वो चेक करेंगे, देन वीनस सैंपलिंग एंड MRA टू चेक की
स्टेनोसिस तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है आर्टरीज में, वेन्स में, वो चेक करेंगे। दिस इज द इन्वेस्टिगेशन। देन इन ट्रीटमेंट वी विल डू व्हाट, क्योंकि हाइपोकैलेमिया है, पोटेशियम कम है, तो हम पोटेशियम देंगे पेशेंट को। देन वी विल लुक फॉर द फर्दर कॉज, कोई कॉज प्रेजेंट है, अगर एडेनोमा इज द कॉज देन वी विल रिमूव द एडेनोमा, सर्जरी करके हम एडेनोमा को हटा देंगे। हाइपरप्लेसिया है या कैंसर है कॉज, या देयर इज स्टेनोसिस ऑफ द रीनल आर्टरी, तो अगर स्टेनोसिस है तो हम क्या करेंगे, हम एंजियोप्लास्टी करेंगे। अगर रीनल स्टेनोसिस या ऑब्स्ट्रक्शन है रीनल आर्टरीज में तो एंजियोप्लास्टी करेंगे। देन पोटेशियम देंगे। देन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, सोडियम ज्यादा है, तो हम उसको करेक्ट करेंगे, पीएच को करेक्ट करेंगे। देन अगर ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है तो वी विल रिमूव द ग्लैंड, दैट इज द एल्ड्रेक्टेक्टोमी, दैट इज द रिमूवल ऑफ द ग्लैंड। एंड बिफोर द सर्जरी, ग्लैंड को रिमूव करने से पहले, क्योंकि एल्डोस्टेरोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है हार्मोन, तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, तो हम क्या करेंगे, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट क्या है, स्पाइरोलैक्टोन, तो हम ये मेडिसिन देंगे। अगर ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो हम ग्लैंड को रिमूव कर देंगे, दैट इज एड्रेनलेक्टोमी।